Hello everyone, welcome to economics class. Today we are going to start a very important topic, that is how national income is calculated or how national income can be estimated. Dear students, this is chapter number 4 and today we will discuss about one method. Let's start the topic. There are three methods of calculating national income. First is the income method, second is expenditure method, and third is a value added method. In fact, these three methods are derived from the three phases of national income or the circular flow of income. In the previous chapter, we have discussed that circular flow has three phases. First is the production, second is the distribution of income, and third is the expenditure. Correspondingly, there are three methods of calculating national income. First is the product method, also known as the value added method. Second is the income method, and third is the expenditure method. Today, we are going to start our first method. This is how national income is calculated from income method. Dear students, the question may be asked in terms of theory or in terms of numerical. First, we will discuss about the theory portion of income method. After that, we will learn how to calculate national income by using income method. Dear students, let's define what is national income according to income method. So, according to income method, national income is the sum total of factor income earned by the factors of production within the domestic territory of a country during an accounting year, including net factor income from abroad. This is the basic definition we have already learned in the previous videos how national income can be defined. So, this is the sum total of the factor income because we are going to discuss about the income method and income is the factor income. That's why we will define this definition in terms of factor income. Now, what's about the factor income? Everybody knows about the term factor income. Factor income refers to the earned income. This is received by household sector for rendering factor services. These incomes or these payments are bilateral in nature. Bilateral in nature means पहले कुछ दिया जाता है फिर ये रिसीव होता है. जैसे लेबर अपनी सर्विसेज देगी तो उसको मिलेगा वेजेस या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. अगर हम अपनी बिल्डिंग किराए पर दे रहे हैं, लैंड को हम किराए पर दे रहे हैं, इससे मिलेगा हमें रेंट. अगर हम कैपिटल की सर्विसेज दे रहे हैं, वी विल रिसीव इंटरेस्ट. अगर हम अपना एंटरप्रेन्योरशिप दे रहे हैं, वी विल रिसीव प्रॉफिट. सो फैक्टर इनकम्स आर द इनकम्स which are earned incomes and are received for rendering factor services in terms of compensation of employees, then rent, then interest, and then profit. Let's start discussing about the concept of factor income. So, factor income are basically of three types. One is the compensation of employees, second is operating surplus, and third is mixed income. Compensation of employees means the income, factor income, which is received by labor. Operating surplus. Operating surplus refers to the income earned from property, ownership, and entrepreneurship. Property, ownership, and entrepreneurship. So, operating surplus के आगे हम components को study करेंगे. Then third one, this is the mixed income of self-employed people. Let's start discussing about the topic. The very first is compensation of employees. Compensation of employees, also known as the remuneration to employees. Dear students, अगर हम employees के बारे में बात करें तो employees को wages and salaries that are given in cash, इसके अलावा भी बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं. वो सारा पर्क्स और फैसिलिटीज़ मिलकर बनता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. इनफैक्ट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ is a wider concept than the wages and salaries. Wages and salaries, these are in cash. Along with this, wages in terms of kind, या हम इसको कहते हैं wages in terms of
पेमेंट्स इन टर्म्स ऑफ काइंड, या हम इसको कहते हैं पर्क्स और फैसिलिटीज़। देखो बेटा, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जहाँ पर एम्प्लॉयज़ को खाना फ्री मिलता है, या ट्रांसपोर्टेशन फ्री मिलता है, एकोमोडेशन फ्री हो सकता है, टेलीफोन फ्री हो सकता है, सर्वेंट फ्री मिल सकता है। इसी तरह से टी ब्रेक में टी एंड स्नैक्स फ्री मिल सकते हैं। ये सारी क्या चीज़ें होती है, यूनिफॉर्म फ्री मिल सकती है। ये सब चीज़ें किस में आती हैं, फैसिलिटीज़ में, पेमेंट्स में, पेमेंट्स इन काइंड में। पैसे तो जो अलग थे वो मिल गए, उसके अलावा फैसिलिटीज़ और भी मिल जाती हैं, वो आएगा आपका वेजेस इन टर्म्स ऑफ काइंड। क्लियर बेटा? जैसे एक एग्जांपल लें कि अगर एक टीचर को सेमिनार अटेंड करने के लिए दिल्ली भेजा जा रहा है, तो उसके लिए उसको टीए और डीए दोनों चीज़ें मिलेंगी। ट्रैवलिंग अलाउंस का मतलब होता है रास्ते में अगर उसने यहाँ से दिल्ली पहुँचने में, अपने नेटिव प्लेस मतलब फतेहाबाद से उसको दिल्ली पहुँचने में अगर उसने टैक्सी ली और उसको 2500 रुपीज़ टैक्सी वाले को, टैक्सी ड्राइवर को पे करने पड़े, तो ये 2500 रुपीज़ उसको उसका ऑर्गेनाइजेशन पे करेगा। अब ये 2500 क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने पे कर दिए टैक्सी ड्राइवर को, सो इट विल नॉट बी अ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। क्यों? क्योंकि ये एम्प्लॉय को नहीं मिला। अलॉन्ग विद डीए, डियरनेस अलाउंस और डीए इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड। डीए का मतलब 500 रुपीज़ आपको पर डे मिलेंगे, आपको अपने लंच के लिए, डिनर के लिए, मतलब पूरे एक दिन के खर्चे के लिए आपको 500 रुपीज़ मिलेंगे। अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि पूरे के पूरे 500 रुपीज़ उस टीचर ने यूज़ नहीं किए, ये उसकी पॉकेट में आ गए, या उसने खाना अपने घर से खाया या खाना उसे नहीं खाया, तो ये 500 रुपीज़ उसकी पॉकेट में आ गए। सो इट विल बी अ पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। सो कीप इन योर माइंड, जो अमाउंट या जो फैसिलिटीज़ उसको मिल रही हैं अदर देन वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, दैट विल कम अंडर वेजेस इन टर्म्स ऑफ काइंड। मूव टू द नेक्स्ट। दिस इज एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स क्या होते हैं, प्रोविडेंट फंड्स एक्सेट्रा। ये एम्प्लॉय को उसके रिटायरमेंट के बाद बल्क अमाउंट मिलता है, इकट्ठे पैसे मिलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर, सपोज करिए एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, वहाँ पर एक एम्प्लॉय को एम्प्लॉय की सैलरी में से 12.5% एज अ प्रोविडेंट फंड और एज अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम कट जाता है, और 12.5% उसका एम्प्लॉयर या ऑर्गेनाइजेशन उसको पे कर रहा है। जो 12.5% उसके अपने पॉकेट में से जा रहे हैं, वो उससे वेजेस एंड सैलरीज में से दिए हैं, तो ये उसके लिए कंपनसेशन नहीं है। लेकिन जो 12.5% उसका एम्प्लॉयर उसको पे कर रहा है, दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ compensation of employees. So keep in your mind, contribution to social security scheme by the employer will be a part of compensation of employees, but contribution to social security scheme by the employee will not be a part of compensation of employees because it is paid out of wages and salaries. मेरी ही जेब में से निकाल लिए गए तो ये compensation नहीं है, लेकिन अगर मेरे employer ने मुझे दिए हैं तो ये बन जाएगा compensation of employees, मतलब फिर ये compensation का part बनेगा. Then we have the fourth point. This is retirement pension, also known as deferred wages. These are to be paid in future. जब रिटायरमेंट होगी तो हर महीने कुछ अमाउंट हमें एज अ पेंशन मिलता है। अब ये जो रिटायरमेंट पेंशन है, दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम ओल्ड एज पेंशन। रिटायरमेंट पेंशन इज़ अ फैक्टर इनकम. This is a part of compensation of employees. So it should be included in national income because it is a factor income. जिसने 58 years या 60 years तक काम किया है उसको रिटायरमेंट पेंशन मिल रही है. On the other hand, old age pension is a transfer payment because every person who is of 60 years or above 60 years is entitled to get old age pension. उसने कोई काम वाम नहीं किया, यूनिलेटरल है, बदले में वो कुछ दे भी नहीं रहा. मीन्स ओल्ड एज पेंशन इज अ ट्रांसफर पेमेंट while retirement pension is a factor payment or factor income, so it should be included in national income. Got the concept? अभी तक हमने पहला पॉइंट पढ़ा, compensation of employees have compensation of employees has four components. One is wages and salaries in cash,
Second, wages in terms of kind. Third, employer's contribution to social security scheme. Then retirement pension or deferred wages. Move to the next, फॉर्मेट ऑफ इनकम मैथड. फॉर्मेट ऑफ इनकम मैथड में हमने अभी तक एक पॉइंट डिस्कस किया था, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. अब हम इसके रिमेनिंग पार्ट्स को स्टडी करें. सेकेंड पॉइंट है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस. ऑपरेटिंग सरप्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस की डेफिनेशन समझिए. ऑपरेटिंग सरप्लस रेफर्स टू द इनकम अर्नड फ्रॉम प्रॉपर्टी, ऑनरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप. प्रॉपर्टी मतलब लैंड से हमें मिलता है रेंट एंड रॉयल्टी. ऑनरशिप मतलब कैपिटल से हमें मिलता है इंटरेस्ट. देन द एंटरप्रेन्योरशिप से हमें मिलता है प्रॉफिट. सो पहला आ गया आपका प्रॉपर्टी से मिल रहा है रेंट एंड रॉयल्टी. रेंट आपको पता है बिल्डिंग किराए पर दी तो मुझे रेंट मिल रहा है. रॉयल्टी इज समथिंग डिफरेंट. रॉयल्टी रेफर्स टू अ लीगली बाइंडिंग पेमेंट made to an individual for the ongoing use of his or her originally created asset, including copyrighted works, franchises and natural resources. इसमें मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. सपोज करिए कि मैंने एक बुक लिखी है और पब्लिशर ने मुझे उसकी पेमेंट दी है, लेकिन जब भी वो बुक्स बिकेंगी, जब भी मेरी लिखी हुई किताबें बिकेंगी, तो डेफिनेटली मुझे उसके लिए रॉयल्टी मिलती रहेगी. मेरा कॉपीराइट है उस बुक पर और वो मुझे मिलेगा. इसी तरह से अगर हम ये बात करें कि सपोज़ करिए कि एक पर्सन है, उसके पास एक लाइसेंस है बी फार्मेसी और डी फार्मेसी उसने किया, तो उसके पास मेडिकल शॉप खोलने का, केमिस्ट की शॉप खोलने का उसके पास लाइसेंस है, लेकिन वो खुद नहीं खोल रहा और उसे अपना लाइसेंस जो है वो किराए पर दे रखा है, तो उसको उसके बदले में इनकम हो रही है. इसी तरह से अगर मेरे पास कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं और मैंने उन नेचुरल रिसोर्सेज को, मेरे पास माइंस हैं तो मैंने वो माइन किसी को यूज़ करने के लिए दी हुई है, तो मुझे उसके बदले में रॉयल्टी मिल रही है. ये एक लीगली बाइंडिंग पेमेंट होता है जो मुझे मिल रहा है. ठीक है, मतलब मैं अपने एसेट्स को, ओरिजिनली क्रिएटेड एसेट्स को किसी को यूज़ करने के लिए अगर मैं दे रही हूँ तो बदले में मुझे मिलती है रॉयल्टी. सो बच्चे ध्यान रखना आपने, रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट और रॉयल्टी नहीं है. अगर आपके क्वेश्चन में रेंट भी गिवन है, रॉयल्टी भी गिवन है, तो आप दोनों को इंक्लूड करोगे. मूव टू द नेक्स्ट. दिस इज इंटरेस्ट. द रेम्यूनरेशन पेड फॉर द यूज ऑफ कैपिटल इज नोन एज इंटरेस्ट. Then move to the third one. This is entrepreneurship, that is the profit. Profit has three parts. One is undistributed profit, also known as retained earning, then corporate saving. Undistributed profit, that part of profit which is not distributed among the shareholders, उनको बांटा नहीं गया. हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड. डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में हमने पढ़ा था कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं या जो फर्म्स होती हैं, कंपनीज होती हैं, वो एक अमाउंट अपने पास रख कर चलती हैं इन ऑर्डर टू मीट द फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़. दिस इज़ द रिटेन्ड अर्निंग, नेट रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेज. इसी तरह से कॉरपोरेट सेविंग भी बोलते हैं, मतलब ये नहीं बांटा गया. देन कॉरपोरेट टैक्स और द प्रॉफिट टैक्स और द कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स और द इनकम टैक्स ऑन प्रॉफिट. चौथा नाम इसका एक और होता है, इनकम टैक्स ऑन प्रॉफिट. सो दिस इज़ ऑल्सो पेड आउट ऑफ प्रॉफिट, इसलिए ये प्रॉफिट का पार्ट है. देन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और द डिविडेंड. फिर से ध्यान से देखिए, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, दिस इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट which is distributed among the shareholders. Corporate tax or the profit tax, this is the tax paid by the producers or the group of producers or the institution to the government out of profit. Then undistributed profit, this is a retained earning or corporate saving जिसको बांटा नहीं गया. So operating surplus में आपके 3 पॉइंट्स आते हैं, rent and royalty, then interest, then profit, and profit has further 3 points, that is undistributed profit, corporate tax and distributed profit. Move to the next one. This is mixed income of self-employed. Mixed income of self-employed means ऐसे लोग जिनका अपना काम है. जैसे सपोज करिए कि मैंने अपने घर में कुर्ता बनाने की, कुर्ते जो कुर्तीज़ गर्ल्स के लिए होते हैं, ये मैंने अपने घर में काम शुरू किया.
मैंने अपने ही घर में, मतलब अपनी ही बिल्डिंग, अपनी ही कैपिटल, अपनी ही लेबर और अपना ही एंटरप्रेन्योरशिप, मैं खुद ही कुर्ते स्टिच कर रही हूँ, खुद ही मैं एंटरप्रेन्योर भी हूँ, खुद ही मेरी कैपिटल अपनी कैपिटल है और अपना ही मेरी बिल्डिंग है। सो ऐसे सिचुएशन में मेरी अर्न इनकम को फैक्टर इनकम्स में डिवाइड करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसको एक ही कंपोनेंट में छोड़ देते हैं। दिस इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयज़ और सेल्फ एम्प्लॉयड। नाउ तीनों मेथड, तीनों टॉपिक हो गए आपके। वन इज़ द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, सेकेंड इज ऑपरेटिंग सरप्लस एंड थर्ड इज द मिक्स्ड इनकम। नाउ हाउ टू कैलकुलेट national income or the domestic income. Dear students, compensation of employees plus operating surplus plus mixed income is equal to NDP at FC. क्योंकि ये कहाँ जनरेट हो रही है? डोमेस्टिक टेरिटरी में। सो दिस इज NDP at FC। मैंने आपको बताया था जब भी हमारे पास FC होता है तो हम इसको इनकम कह सकते हैं। डी डोमेस्टिक, सो हम इसको डोमेस्टिक इनकम या नेट डोमेस्टिक इनकम कह सकते हैं। नेट डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में जाना, दैट इज़ नेट नेशनल इनकम में जाना, तो सिर्फ एक ही फ़र्क आ रहा है इसमें। क्या फ़र्क आ रहा है बच्चे? इसमें फ़र्क आ रहा है हमारा एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। सो दिस इज ऐड कर देंगे हम इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, दिस इज इक्वल टू नेशनल इनकम। क्लियर बेटा? चलिए फिर दोबारा से एक बार इसको रिकॉल करें। इनकम मैथड, दिस इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। इन तीनों के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? दिस इज ऑपरेटिंग सरप्लस। क्लियर? दिस इज ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम is equal to NDP at FC plus net factor income from abroad is equal to national income. Clear beta? Move to the next topic. Let's be practical. There is a question. Calculate NDP at FC. Calculate NDP at FC, NNP at FC and NNP at MP from the given data. NDP at FC इनकम मैथड हमें यूज़ करना है। अपनी मेमोरी को रिकॉल करिए। हमारे पास होना चाहिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, है हमारे पास, याद करिए। हमें चाहिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, हमें चाहिए ऑपरेटिंग सरप्लस, हमें चाहिए मिक्स्ड इनकम। सो नंबर 1 प्लस नंबर 3 प्लस नंबर 4 विल गिव अस NDP एट FC। NDP एट FC से जाना है हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट में, मतलब जब हम डोमेस्टिक से नेशनल में आते हैं हम यूज़ करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को प्लस करेंगे, पर हमारे क्वेश्चन में माइनस गिवन है, इसका मतलब हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। दिस इज़ -60। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड नेगेटिव होने का मतलब क्या है? फैक्टर इनकम टू एब्रॉड इज़ एक्सीडिंग ओवर फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। बाहर से कम मिल रहे हैं और हमें देने ज़्यादा पड़ रहे हैं, इससे ये माइनस हो जाएगा। फिर हमें चाहिए NNP एट MP। NNP एट MP के लिए हमें क्या चाहिए? FC और MP। जब हम FC से MP में आते हैं हम ऐड करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। फॉर्मूलाज याद है, प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था हाउ टू कन्वर्ट नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स इन वन एंड अनदर फॉर्म। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जब हमें FC से MP में जाना है तब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर देते हैं। सो ये सारी वैल्यूज़ हैं हमारे पास। डेप्रिसिएशन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर हमारे क्वेश्चन में कुछ ग्रॉस से रिलेटेड होता तो हम डेप्रिसिएशन को यूज़ करते। अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। ऑन द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव द इंफॉर्मेशन, वी हैव द सॉल्यूशन ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन। आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। नो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज वन एक्सरसाइज। फाइंड द GNP एट MP, GDP एट MP, NNP, यहाँ पर NNI है, इट शुड बी NNP एट MP, NDP एट MP। ये PD वर्ड बच्चे आपको नहीं करना बिकॉज दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस। दिस इज़ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, आपको नहीं करना। ये कुछ वैल्यूज़ गिवन है और मैंने साइड पर इसका आपका मेथड भी लिख दिया। इनकम मेथड में क्या क्या आता है ये सब आपको फॉर्मूलाज अब याद है।
आप इसको अच्छे से करोगे. Now what's about your homework? Dear students, you are to revise the income method properly, the theory portion as well as the numerical. Few numericals are given in your textbook also. आप अपनी बुक में से करिए. मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में नमारिकल सेंड करूँगी. अभी आपको परेशान नहीं होना बिकॉज वी हैव डिस्कस ओनली अबाउट द इनकम मैथड. सो जब आप नमारिकल्स करोगे अपनी बुक में से तो वहाँ पर आपको कुछ अजीब सी आइटम्स भी मिल सकती हैं जिनके बारे में आपने पढ़ा नहीं है. आपको समझ नहीं आएगा उनको लेकर, बट परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे की वीडियोज़ में जब हम एक्सपेंडिचर मैथड और प्रोडक्ट मैथड करेंगे तब हम उन आइटम्स के बारे में भी स्टडी करेंगे और नमारिकल्स के बारे में भी स्टडी करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, डू प्रैक्टिस द नमारिकल्स as well as revise the theoretical portion of this method from your book carefully. Okay, beta? So, stay home, stay safe, do your work properly. Have a wonderful day. Goodbye, dear students.